آغاز میں بات کر لیتے ہیں کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ خبر دیں آپ کو کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ نشتر پارک سے وہ جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ کراچی میں نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ اس پلان کے مطابق نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں درے شوار سے۔ جی درے بتائے گا کیا پلان مرتب کیا گیا ہے؟ جی بالکل، تعزیے کے حوالے سے جو ہے اے آئی ٹی کی ایک بہترین جو ہے اس سے کراچی پولیس نے چپ تازیے کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے، جو کہ کل صبح نشتر پارک سے برآمد ہونے والے سیکیورٹی پر 3745 جبکہ دن میں قصر مصب سے برآمد ہونے والے 2320 پولیس افسران و اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے۔ دونوں مقامات پر مجموعی طور پر 6065 اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے، جو سیکیورٹی پلان کے تحت تھرڈ پارٹی ٹاور جو ہے سی سی ٹی وی کنٹرول روٹ ڈپلائمنٹ روٹس آف ڈیوٹی، داخلی و خارجی راستوں پولیس کے روٹ اور اہم واپسی کے روٹ اور اہم مقامات پر خصوصی نفری تعینات ہوگی، جبکہ اہم اسپتالوں پر بھی پولیس نفری موجود رہے گی۔ ٹھیک ہے درے، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں چپ تازیہ جلوس کے موقع پر پولیس نے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ نشتر پارک سے جلوس کی سیکیورٹی پر 3745 جبکہ قصر مصب سے برآمد ہونے والے جلوس کے لیے 2320 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ سندھ سرکار نے گریڈ 17 کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے، جس کے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن اور محکمہ بلدیات سندھ نے الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں سندھ سرکار نے گریڈ 17 کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں، جس کے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن اور محکمہ بلدیات سندھ نے الگ الگ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوریو سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومت سندھ نے 17 گریڈ کے 7 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر متعلقہ محکموں نے الگ الگ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق علی اکبر ٹگر کو سیکشن افسر محکمہ آبپاشی سندھ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ 17 گریڈ کے افسر
अली अकबर टिकट तैनाती के मुंतजर थे, जबकि जुल्फकार अली को टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन न्यू कराची तैनात कर दिया गया है। टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन कमेटी जो है म्यूनसिपल कारपोरेशन न्यू कराची अब्दुल जब्बार मेहर को ओहदे से फारिग किया गया है, जबकि अब्दुल जब्बार मेहर को महकमा बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि अब्दुल सत्तार सुमरो को टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन लियाकताबाद कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन लियाकताबाद दरिया खान 85 को जो ओहदे से फारिग करके उनको भी रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि यासर अली को टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन शाह फैसल तैनात कर दिया गया, जबकि ये ओहदा खाली था। इसके अलावा सैयद आयशा नकवी को जो है टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन बल्दिया जो है तैनात कर दिया गया है, जबकि टाउन म्यूनसिपल अफसर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन बल्दिया फयाज अली शाह को उधर से फारिग करके उनको महकमा बल्दिया में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। लांढी मस्जिद कॉलोनी कालापानी से 13 अगस्त को लापता होने वाली 6 साल आयशा गुलालाई ताहाल बाजियाब न हो सकी। आयशा की वालिद की मुद्दत में कैदाबाद थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया क्या है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शवार से, जो इस वक्त गुमशुदा बच्ची के वालिद के हमरा मौजूद हैं। जी दुरे, बताइए। कराची में बच्चों की गुमशुदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लांडी मस्जिद कॉलोनी में, जहां पर 13 अगस्त को एक 6 साल आयशा गुलालाई जो लापता हुई है पुरअसरार तौर पर, जिसका अभी तक 9 दिन गुजरने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। वालिद की मुद्दत में कायदाबाद थाने में FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस यहाँ पे चक्कर भी लगाती है, फुटेज वगैरह, यहाँ इस गली में तो कहीं पे भी कोई कैमरा नहीं है, लेकिन जो गली से बाहर कैमरे हैं फुटेजेस निकालने की कोशिश की जाती है, फुटेजेस चेक भी की जाती हैं, लेकिन रिजल्ट नतीजा सिफर है। बच्ची 9 दिन गुजरने के बाद भी आज तक अपने जो है वालिदैन को बाजियाब करवा के नहीं दी गई है। अच्छा जी, अगर मैं 2 दिन पहले के एक वाक़े पर थोड़ी सी नजर डालूं, एक बच्ची की लाश मिली थी कराची के इलाके लांडी से ही, नाले से बरहना हालत में बोरी में उस बच्ची की लाश बंद थी। वालिदैन गए हैं उसको चेक करने के लिए, लेकिन इनकी जानिब से ये कहा गया कि ये हमारी बच्ची नहीं है, क्योंकि कद में कुछ फर्क बताया जा रहा था। आज उस मिसिंग केस के ऊपर हम आवाज उठाने आए हैं। बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद है। लाला, बताइएगा कब से, आपने बताया 13 अगस्त से बच्ची गुम हुई है, पुलिस क्या कहती है, कहाँ तक जो है इन्होंने जो कार्रवाई है वो की है? पुलिस सुबह आ जाती है यहाँ पे, हम या बुलाते हैं खुद जाके उनको, कोई कैमरा मिलता है हमें तो हम उसको बुलाते हैं कि भाई ये कैमरा चेक कर लें, तो वो तो रिकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, लेकिन बाद तो कैमरों में हमने खुद चेक किया, कुछ वो खुद कह रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं, लेकिन वो जब हम नहीं पूछते हैं तो पुलिस फिर खुद से नहीं आती है, हमें बुलाना पड़ता है उनको, किया कोई मसला है तो आप देख लो, इसको देख लो, लेकिन खुद से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि वो खुद से आके यहाँ कुछ देखें, कोई पूछताछ करें, लेकिन पुलिस भी ऐसे कुछ नहीं कर रही है। उसमें जो बच्ची है उसका DNA लिया गया है कि DNA देखा जाएगा कि ये खुदा ना खास्ता ये वो बच्ची तो नहीं है आयशा जो गुमशुदा हुए हुए जिसे 9 दिन हो चुके हैं, क्योंकि ये परसों जो बच्ची मिली है ताहाल अभी इसकी भी किसी भी किस्म की कोई शनाख्त है, इसका अमल नहीं हो सका है, ना ही इसके वालिदैन सामने आए हैं। और ये है कि बच्ची को गुमशुदा हुए 9 दिन हो गए हैं। वालिदैन के जगाने के बाद पुलिस यहाँ आती है, इस पर वर्किंग करती है, ताहाल पुलिस की जानिब से अभी किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो नहीं देखने में आई कि जिसकी वजह से ये बच्ची बाहिफाजत बाजियाब हो सके। जी नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है, जिसके तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में मामूली इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफा भी महंगाई का बोझ बढ़ा देता है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा, मामूली इजाफा भी शहरियों के लिए बायस तशवीश बन गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली इजाफे पर भी शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी मुतासिर होती हैं। ये ऐसी हुकूमत है कि हर बंदा, हर गरीब जो है इस हुकूमत से जो है वो काफ़ी खफा है।
तो अभी क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत देगा, पर लगता नहीं है कि इस मुल्क का कुछ हो। बोझ तो है, दिहाड़ी है 1000 रुपये और 400 रुपये का पेट्रोल चला जाता है। अब बताएं इसमें गरीब तबके के लोग कैसे पूरा करेंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही कुव्वत खरीद को मुतासिर कर रही है। ऐसे में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफा भी आम आदमी के लिए इजाफी बोझ बन जाता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा भी उनकी रोज़ाना आमदन और बचत को मुतासिर करता है, जबकि किरायों में इसे तनासब से इजाफा न होने के बायस अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव, ऑनलाइन बाइक राइडर्स की परेशानी बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल तब्दीली का बराह रास्त असर उन अफराद पर पड़ रहा है जो मोटरसाइकिल को रोजगार का जरिया बनाए हुए हैं। राइडर्स का कहना है कि दिन भर सड़कों पर राइड्स मुकम्मल करने के बावजूद पेट्रोल के अखराजात निकालना मुश्किल होता जा रहा है। राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से रोजाना के अखराजात बढ़ जाते हैं, जबकि राइड के किरायों में इसी तनासुब से इजाफा नहीं होता, जिसके बाइस मेहनत के बाद हासिल होने वाली आमदन में से बचत इंतहाई कम रह जाती है। बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और पहले से तो बहुत ही कम हो गया और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो काम हो ही नहीं रहा, इसलिए कि हर कोई परेशान है। इसलिए बाइक में कैसे बैठेगा वो, या 300 रुपये कैसे खर्च करेगा? वो तो बोलेगा मैं 30-40 रुपये में बस में चला जाऊँ, तो उसकी वजह से हमारा काम काफ़ी कम हो चुका है। राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव के बजाय नरखों में इस्तेहकाम लाया जाए, ताकि रोजाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल चलाकर रोजगार कमाने वाले अफराद के अखराजात कुछ कम और आमदन में बचत मुमकिन हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं, जिनका कहना है कि महंगे पेट्रोल ने रोजाना के अखराजात बढ़ा दिए हैं, जबकि महदूद आमदन में घर का बजट चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी जानिब शहरी भी बढ़ते सफरी अखराजात से परेशान हैं। राबिल सदीद की रिपोर्ट देखिए। घर चलाएं या रिक्शे में पेट्रोल डलवाएं, पेट्रोल महंगा होने से ड्राइवर्स की मुश्किलात भी बढ़ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महदूद आमदन में रोजमर्रा अखराजात पूरे करना पहले ही मुश्किल था, अब महंगे पेट्रोल ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। रिक्शा ड्राइवर से कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन के अखराजात में चला जाता है, जिसके बायस घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। ड्राइवर्स के मुताबिक पहले जितनी आमदन होती थी, अब इसी में से ज्यादा रकम पेट्रोल पर खर्च हो जाती है। एक तरफ रक्शे की दीगर अखराजात हैं तो दूसरी जानिब घरेलू जरूरियात, जिसके बायस महदूद आमदन में गुजारा मुश्किल हो गया है। तो इसकी वजह से सवारियों को भी काफ़ी मुश्किल होती है और हमें भी मुश्किल होती है और रोज़ाना की हमारी लड़ाई होती है। ये ज़हनी डिप्रेशन की वजह, वो भी 10-20 रुपए किराया बढ़ा रहे हैं, वो भी बेचारे मजदूर हैं। कुछ तो मुनाफे मतलब उसमें कुछ कमी तो करनी चाहिए ना, कि अभी गरीब आवाम कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए तो हमें तो कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। अभी दूसरी जानिब शहरी भी बढ़ते सफरी अखराजात से परेशान है, जिनका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि किरायों और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर भी पड़ता है। हर महीने है ना, उसमें महंगाई हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है आवाम के लिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने सड़कों पर रोजगार कमाने वाले रिक्शा ड्राइवर्स के साथ साथ सफर करने वाले शहरियों का बजट भी मुतासर कर दिया है। ड्राइवर्स और शहरी दोनों ही ये बढ़ते अखराजात के बाइस रिलीफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ राबिल सदीद, सिटी 21। हॉक्सबे मोड़ से अब्दुल रहमान गोठ माड़ीपुर रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार है। गहरे गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात के साथ हादसात का सबब भी बन रहे हैं। कराची पोर्ट का हैवी ट्रैफिक भी इसी रास्ते से गुजरता है। शहरियों के मुताबिक बारिश, सड़क पर ऑयल गिरने और भारी ट्रैफिक के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। इस हवाले से मजीद देखते हैं रजवान अहमद की रिपोर्ट में। गड्ढे गहरे, सफर मुश्किल, मारीपुर रोड पर सफर करना इम्तिहान बन गया। हॉक्सबे मोड़ से अब्दुल्ला रहमान गोट तक जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जगह जगह मौजूद गहरे गड्ढों के बायस मोटरसाइकिल सवारों और दीगर गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि खस्ता हाल सड़क हादसात का सबब बन रही है। परेशानी यही होती है, सुबह को जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं, हैवी ट्रैफिक चलती है, हादसे होते हैं। 2-3 दफा तो ऐसा हुआ है कि इतने हैवी एक्सीडेंट हुए इधर
یہ شاہراہ صرف ساحل سمندر کا رخ کرنے والے شہریوں کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ اطراف کی آبادیوں کے مکین بھی روزانہ اسی راستے سے آمد و رفت کرتے ہیں۔ کراچی پورٹ سے آنے جانے والے ہیوی ٹریفک بھی اسی شاہراہ سے گزرتا ہے، جس کے باعث سڑک پر ٹریفک کا دباؤ مسلسل برقرار رہتا ہے۔ شہریوں کے مطابق بارش کے بعد صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ گہرے گڑھوں میں پانی بھرنے سے سڑک کی خستہ حال کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ سڑک پر آئل گرنے اور ہیوی ٹریفک کے باعث کئی مقامات پر سڑک دھنس چکی ہے۔ پھر بھی روڈ کا یہ حال ہے، آپ دیکھ لو، بارش ہوتا ہے روڈ سارے خراب، پانی باہر، ہر اتوار کو ہر ہفتے کو فیملیاں گری ہوئی ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ روڈ بہت خراب ہے، گاڑیاں تیز جاتی ہے بارشوں کے ٹائم پہ، تو اس کے لیے گاڑی روکنا پڑتا ہے۔ روڈ پہ بہت گڈھے وغیرہ ہے۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہاکس وے موڑ سے عبداللہ رحمان گوڑ تک سڑک کی فوری مرمت کی جائے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں درپیش مشکلات اور حادثات کے خطرے سے نجات مل سکے۔ کیمرہ مین اجران چیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔